استقبال کرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، حضرت مولانا توفیق رضا صاحب اشرفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ممبر ناز پر تشریف فرما بوقار حفاظ کرام شورا اسلام، بالخصوصیت کے ساتھ نقیب اجلاس حضرت عاشق رضا برکاتی صاحب قبلہ، ساتھ ہی ساتھ حضرت حافظ وقاری عارف برکاتی صاحب قبلہ، حضرت حافظ وقاری مشیر واسطی صاحب قبلہ، میرے بڑے بھائی ابھی تشریف لائے حضرت حافظ وقاری وارث رضا صاحب قبلہ، ساتھ ہی ساتھ مجھ سے بڑی محبت کرنے والے حضرت علامہ مولانا رئیس صاحب قبلہ، آپ کی مسجد کے خطیب و امام، دیگر معزز سامعین کرام، بڑے ادب و احترام کے ساتھ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد درود پاک پڑھنے اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور آواز بلند درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، قابل قدر میں اپنے چھوٹے بھائی جناب فاروق اور صاحب ان کی تمام تر انتظامیہ جو کمیٹی ہے، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا۔ اللہ رب العزت ان کے حوصلوں میں بلندی عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہر سال اس طریقے سے جلسہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی آپ نے جس محفل کا انعقاد کیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ آپ سبھی کا آنا، ہم سبھی کا یہاں پر بیٹھ کر ذکر کرنا مولا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیں، اس کے بعد پھر آپ انشاءاللہ ایک ایسے ماحول میں پہنچیں گے کہ آپ جب سن کے یہاں سے جائیں گے نا تو انشاءاللہ رات بھر اپنے بستر پہ مچلیں گے۔ ایسا ماحول آپ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ شاعر ہندوستان حضرت سلیم رضا پیلی بھیتی تشریف لا چکے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس بزم کے مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا دلشاد رضا صاحب قبلہ جو کہ کلیر شریف سے تشریف لائے ہیں۔ اب جب کلیر شریف کی کہہ دیا گیا تو سمجھ لیجئے کہ کتنا بڑا فیضان لے کر آئے۔ انشاءاللہ انہیں بھی آپ مکمل سماعت فرمائیں گے۔ اپنے چھوٹے بھائی کو تھوڑی دیر برداشت کر لیجئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سے نقیب اجلاس کے حوالے میں جلسہ کروں گا، اور یہ انشاءاللہ اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ بلا کسی تاخیر کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اہل منبر کی توجہ چاہوں گا، اور مکمل طریقے سے جن کو جانا تھا وہ جا چکے، ابھی بھی جس کو جانا ہو وہ الحمدللہ جا سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن دوران خطاب آپ
अगर उठेंगे तो मुझे तकलीफ होगी। अगर अभी किसी को जाना है किसी हाजत से, वो उठ सकता है, जा सकता है, मेरी इजाजत है। लेकिन खुदा खैर करे, नौजवानों ने बड़ी मेहनत से जलसे को सजाया है, खुदा खैर करे आप सबका, आप इस जलसे को बर्बाद ना करें, यार उनके हौसलों को पस्त ना करें। अगर वाकई आप सिर्फ उनको अपना चेहरा दिखाने आए थे तो फिर कोई बात नहीं, अगर दुनियादार के लिए आए थे तो कोई मसला ही नहीं, लेकिन अगर नबी परवरदिगार के लिए आए हैं, अगर आमना के लाल के लिए आए हैं, अगर मदीने के ताजदार के लिए आए हैं, तो फिर जिक्र मुकम्मल सुन के जाइए, ताकि आपको समझ में आए कि जैसा शुरू कहां से हुआ था और उसका खात्मा कहां हुआ है, इख्तिताम कहां पर हुआ है। मेरे अजीज, आप मुकम्मल तरीके से बैठे रहिए, थोड़ी देर मुझे समाअत फरमाइए और उसके बाद इंशाअल्लाह सलीम रजा पीलीभीती और इंशाअल्लाह मौलाना दिलशाद रजा साहब को मुकम्मल आप समाअत फरमाएंगे। मचल के बोले सुभान अल्लाह। अगर जग रहे हो तो बोलिएगा सुभान अल्लाह, और के बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, बेशहक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, बेशहक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, मेरे बरेली के कलंदर ने, बरेली के मुजद्दिद ने, एक आशिक़े रसूल ने बरेली की सरजमीन पर बैठकर, टूटी चटाई पर बैठकर कलम तोड़ दिया और इस तरीके से रकम करते हैं, बेशहक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, हमें तो रोना नहीं आता है, हमने तो आपकी मोहब्बत में एक आंसू तक न गिराया, हमने तो आपकी उल्फत में हमें रोना ना आया। अल्लाह अकबर, सीरियल और ड्रामों को देखने के बाद आज नौजवान इमोशन में आ जाता है, अल्लाह अकबर, उसकी आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की याद में, आमना के लाल की याद में, करबला के शहंशाह की याद में, बगदाद के ताजदार की याद में कभी हमारी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकलता है। साहिबों, अपने दिलों पे हाथ रखो, क्या हमने इश्क का हक अदा किया है? क्या हमने मोहब्बत का हक अदा किया है? कौन सा चेहरा लेकर कब्र अंदर में जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर मुस्तफा के सामने जाओगे? सीरियल और ड्रामों को देखने के बाद अपनी आंखों में आंसू लाने वालों, मुस्तफा जाने रहमत के नवासे को, मौला हुसैन को क्या चेहरा दिखाओगे जाके? आज तुम कहते हो हमसे वक्त नहीं गुजरता है, चाय की टपरी पे बैठकर, कभी चौराहों पे बैठकर अपने वक्त को बेजा जाया करने वालों, तुम कहते हो कि हमारी जवानी के लम्हात नहीं गुजरते हैं। नबी में इतना से जुमला दे रहा हो, जरा मुलाहिजा फरमाइए। आप कहते हो कि हमसे हमारी जवानी नहीं समझ रही है, ये जवानी हमसे कटती नहीं है। जब तक हम पबजी में 2 घंटे ना बर्बाद कर दे, जब तक फेसबुक के नाम पे अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात उसके नाम पर बर्बाद न कर दे, उस वक्त तक हमें नींद नहीं आती है। बगैर मोबाइल के नींद ना आने वालों, आप जरा गौर से सुनना इस बात को। आप कहते हो कि हमारी जिंदगी के लम्हात नहीं गुजर रहे हैं, जिंदगी का वक्त नहीं कट रहा है, इसीलिए हम फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का हम सहारा लेते हैं। मैं उस मुजाहिद की बारगाह में तुम्हें न लेकर चलूं, उसकी जिंदगी न सुना दो, एक ही जुमले में मसले को हल करता हो। आप कहते हो हमारी जिंदगी के लम्हात नहीं गुजरते हैं, इसलिए हम फोन का सहारा लेते हैं। हमारी जवानी नहीं समझ रही है, इसलिए हम फोन का सहारा लेते हैं। अगर परोसे महशर मुस्तफा जाने रहमत ने पूछ लिया, क्या सिर्फ तेरे ऊपर ही जवानी आई थे? क्या मेरे बेटे अली अकबर के ऊपर जवानी आई थी? क्या मेरे बेटे अली अकबर आई थी? जरा गौर से सुनना, वो खतीब और होंगे जो आपको हंसाने के लिए आएंगे। माजरत चाहूंगा मुझसे उन जुमलों की आप इस बात की बिल्कुल कोशिश न करना, और मुझसे ये तवक्को भी मत करना कि मैं आपको ऐसे जुमले सुनाऊंगा। आज वो दास्तां सुनाने आया हो, वो चीज सुनाने आया हूँ, वो दर्द सुनाने आया हूँ। आज तकरीर नहीं करूंगा, तकरीर तो इंशाअल्लाह हजरत की होगी, मैं सिर्फ दर्द बयान करके यहाँ से गुजर जाऊंगा। किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है, रसूल का तरीका हमारे लिए नमूना अमल है, रसूल का इखलाक हमारे लिए नमूना अमल है, रसूल का किरदार हमारे लिए नमूना अमल है। मेरे मुस्तफा फरमाएंगे बरोज़े महशर को, क्या क्या तुझे ही सिर्फ जवानी आई थी? क्या मेरे बेटे अली अकबर के ऊपर जवानी नहीं आई थी? क्या मेरे बेटे अली कासिम के ऊपर जवानी नहीं आई थी? अल्लाह अकबर, आप उस वक्त क्या जवाब दोगे? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अपनी जिंदगी और अपनी जवानियों पे नाज करने वालों, आपको कब्र का चेहरा देखना है, आपको मुस्तफा को चेहरा दिखाना है, मुस्तफा जाने रहमत के नवासों को चेहरा दिखाना है। अल्लाह अकबर, मुस्तफा
मुस्तफा की याद में हम एक लम्हा न रोए, लेकिन मुस्तफा हम जैसे बेवफाओं के लिए रोए हैं, मुस्तफा हम जैसे खताकारों के लिए रोए हैं। अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत के रोने को जब बरेली का ताजदार देखता है तो कुछ इस तरीके से रकम फरमाते हैं बरेली के ताजदार, पेशहद मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेशहद मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे। अगर बात समझ में आ रही है तो पीछे वाले हजरात आगे आ जाए, अगर बात समझ में आ रही है तो जो लोग पीछे बैठे वो आगे आ जाए, आपको अल्लाह उसके रसूल का वास्ते आगे आ जाए, आगे आ जाए। थोड़ी देर माहौल बनाए थोड़ी देर माहौल। या तकरीर को बंद कर दिया जाए, बोले तकरीर बंद कर दी जाए, आगे आ जाए। अगर सुनना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए माहौल बना ले इंशाअल्लाह। थोड़ी देर में सुन ले, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपने रसूल की जिंदगी को भुलाया है, हमने रसूल के तरीकों को भुलाया है, हमने रसूल के किरदार को भुलाया है, हमने रसूल के अखलाक को भुलाया है, हमने रसूल के तौर तरीके को भुलाया है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से आज गैर फायदा उठा रहे हैं, आज रसूल की जिंदगी पर गैर रिसर्च कर रहे हैं और कामयाबियों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, और जो सुरक्षा पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आज क्या वजह है कि उम्मत मोहम्मदिया जलील हो रही है? उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। थोड़ी देर तवज्जो के साथ सुनिएगा, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, हमारा किरदार मुसलमानों वाला नहीं है, हमारा इखलाक मुसलमानों वाला नहीं है। अल्लाह अकबर को मुसलमान कभी ऐसे भी हमारे अकाबिरीन और असलाफ हुआ करते थे कि अगर पड़ोसी का बच्चा रो दे तो रात भर नींद नहीं आया करते थे। कभी हमारे इखलाक और किरदार ऐसे भी हुआ करते थे कि खुद ना खाकर गैरों को खिलाया करते थे। तो उस वक्त बरेली के ताजदार की जबान में ये दुनिया बोलती थी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, हज़रत मौलाना तौफीक रज़ा अशरफी। थोड़ी देर 10 मिनट मुझे सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से आप हजरत सलीम रज़ा पीलीभीती को आप समाअत फरमाएंगे, जो कि हमारे मेहमान हैं। और हमारा फर्ज बनता है कि हजरत को हम वक्त दें, और इंशाअल्लाह हमें तो आप कभी भी सुन सकते हैं, जब चाहे तब बुला के सुन सकते हैं। लेकिन 10 मिनट मुझे और वक्त दो। सुनना चाहते हैं अभी देखिए हमारे मेहमान हैं। अगर हमने माहौल बना के न दिया जिस तरीके से आप सुन रहे थे, यकीन मानिए कि सुनने का तरीका नहीं है। हिंदुस्तान में कई जगह, छोटी मोटी जगह हम भी तशरीफ ले जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए इस्लाम, हज़रत सलीम रज़ा पीलीभीती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह सुनेंगे, मुकम्मल सुनेंगे। अभी आपने नावेद रज़ा वास्की साहब को सुना है, बहुत अच्छी तरीके से सुना। उसी तरीके से आप शायर खुसूसी हजरत सलीम रज़ा पीलीभीती साहब को आप मुकम्मल तौर से सुनेंगे। थोड़ी देर माहौल और बेदार हो जाए, बिल्कुल मनमा बेदार हो जाए, माहौल अच्छा हो जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह मुकम्मल मैं हजरत के हवाले कर दूंगा और मुकम्मल आप भी सुनेंगे और मुकम्मल हम भी सुन के जाएंगे, क्योंकि ये जलसा अपना है और हम ये चाहते हैं जलसा जितना ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो जाए। यकीन माने हमारा आना यहाँ बिल्कुल जो मकसद है बिल्कुल वसूल हो जाएगा, बिल्कुल हम कामयाब हो जाएंगे, आप भी कामयाब हो जाएंगे। मचल के बोले सुभान अल्लाह। मेरी सरकार की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। अहले मिंबर की तवज्जो चाहूंगा, 10 मिनट मुझे वक्त दे, इंशाअल्लाह मैं अपने खिताब को बिल्कुल इख्तिताम की तरफ ले चल रहा हूँ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, लेकिन इखलाक और किरदार की जब बात आती है, अल्लाह अकबर, हमारे घरों की बेवाएं सिसकती रहती हैं, हमारे घरों की बेवाओं की बेटियां अल्लाह अकबर कभी दहेज के नाम पे सिसक रही है, कभी यतीमी और गरीबी के नाम पे सिसक रही है। लेकिन हमारी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो वही करेंगे जो हमारी मर्जी है। लेकिन मियाँ ये दुनिया है, यहाँ जो चाहो वो कर लो, लेकिन एक एक चीज का हिसाब और किताब मैदान महशर में देना पड़ेगा जाकर। अगर आपकी वजह से कोई रोएगा उसका भी हिसाब मैदान महशर में देना पड़ेगा। मेरे रसूल का किरदार क्या है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बहन है जिनका नाम हजरत शीमा है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। जो हजरत हलीमा सादिया की बेटी है। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जब कबीले साल में तशरीफ ले गए थे, बचपने में आप तशरीफ ले गए, जब हजरत हलीमा आपको लेकर गई तो आपको खिलाने का जो काम करती थी वो हजरत शीमा ही किया करते थे। मेरे अजीज जरा गौर करें, आज हमने अपने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल
जिंदगी का एक बाब आपको सुना दूं, जिससे आपके ज़हन व फिक्र में एक अजीब व गरीब कैफियत पैदा हो जाए, जिससे आपका ईमान मजबूत हो जाए, रसूल से मोहब्बत बेपनाह पैदा हो जाए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरे आका का किरदार तो वो है कि अगर गैर भी देख ले तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। मेरे रसूल का किरदार वो है, लेकिन आज क्या वजह है कि हम जलील हो रहे हैं? क्योंकि हमने रसूल के किरदार को नहीं अपनाया है, हमने रसूल के अखलाक को नहीं अपनाया है। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, हजरत शीमा है और उसके बाद मेरे सरकार को ये खिलाया करती थी। बड़े नाजों से इन्होंने अपने गोद में मेरे सरकार को झूला झुलाया है। और जब शाम के वक्त अपने अपने भाइयों को लड़कियां लेकर उनकी बहनें मैदान में आया करती थी, असर के बाद अल्लाह अकबर, तो हजरत शीमा कहती थी कि देखो मेरा वीर सबसे सोना लग रहा है, देखो मेरा वीर सबसे खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह अकबर, ये हजरत शीमा की मोहब्बत है जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की साथ मुबारका से है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, एक वक्त वो भी आया है जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों की जंग अल्लाह अकबर हजरत शीमा के कबीले से होती है और उसके बाद हजरत शीमा के कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। कई तारीखों में इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से बात आप पढ़ सकते हैं, अपने उलमा से सुन सकते हैं। मुस्तफा का किरदार और इखलाक क्या है, बस ये बताना चाहता हूँ। अल-मुख्तसर अपनी तकरीर को बिल्कुल समेट रहा हूँ। मेरे रसूल के दीवानों, आका करीम अलैहिस्सलाम ने, आपके दीवानों ने, आपके सहाबा ने जब जंग लड़ी तो अल्लाह अकबर हजरत शीमा के कबीले वालों को शिकस्त हुई और उनके कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। मेरे रसूल का फरमान जारी हुआ कि जो भी इन कैदियों को छुड़ाना चाहता है, या तो वो कुछ फिदिया लेकर आए, पैसे लेकर आए और इन कैदियों को छुड़ा कर ले जाए। अल्लाह अकबर हजरत शीमा के कबीले के लोग भी अपने कबीले में चंदा करने लगे। हर घर पे जाते और कहते कि हमारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको कैदी बना लिया गया है, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि हम उन्हें रिहा करवा सके, हम उन्हें छुड़वा सके। अल्लाह अकबर, चंदा करते करते लोग हजरत शीमा के दरवाजे पे भी पहुंच जाते हैं, आवाज देते हैं। हजरत शीमा ने कहा कौन सारी बातों को वजाहत से बताया गया। बताने के बाद हजरत आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, हजरत शीमा ने जब नाम सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों ने उन्हें गिरफ्तार किया है, इतना नाम सुनना था कि हजरत शीमा के चेहरे पे खुशी जाहिर हो जाती है। अल्लाह अकबर, भाई का नाम सुना था, चेहरे पे खुशी जाहिर हो गई, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई और अपने कबीले के लोगों से कहती है कि अब तुम्हें चंदा करने की जरूरत नहीं है, चलो मुझे उनके पास लेकर चलो, तुम्हारे लोगों को यूं ही वो छोड़ देंगे, कोई फिदिया नहीं लेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। हजरत शीमा के लोगों ने, हजरत शीमा के कबीले के लोग हजरत शीमा को लेते हैं, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर पहुंचते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे अनवर के अंदर तशरीफ फरमा है और मुस्तफा का पहरा उनके सहाबी दे रहे हैं। तलवारों की छांव में मुस्तफा के लिए पहरा दिया जा रहा है। अब वो दौर खत्म हो चुका है जब लोग ओझड़ियां फेंका करते थे, वो दौर खत्म हो चुका है जब लोग अल्लाह अकबर पत्थर मारा करते थे। अब अगर मुस्तफा से मिलना है तो घर जाओ, कुछ पैसा दीनार और दिरहम लो, बाजार में जाकर सदका करो, जाकर उसके बाद मोहम्मद अरबी से मुलाकात करो। अब ये दौर आ चुका है। हजरत शीमा ने झांक कर देखा, देखने के बाद मोहम्मद अरबी का चेहरा नजर आया। जैसे वो देखते और कहती है ये तो मेरे भाई है। अल्लाह अकबर, सहाबी रसूल सुनते हैं, सुनने के बाद कहते हैं ऐ देहाती औरत, अपने जुमलों को जरा संभाल, जानती है तू किसकी शान में अल्फाज कह रही है। हजरत शीमा फरमाती है हाँ हाँ, मेरे ये भाई लगते हैं, मैंने इनको बचपन में खिलाया है। अल्लाह अकबर, आका करीम के गुलाम आपकी बारगाह में तशरीफ ले जाते हैं। अर्ज करते हुजूर, एक देहाती औरत आई है, अपना नाम शीमा बताती है, आपको अपना भाई बता रही है। मेरे आका ने जैसे ही नाम सुना है, अल्लाह अकबर, अपने मसनद से आप खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, खड़े हो जाते हैं, बाहर तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते बहन तू बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आ जा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन को अंदर किया और उसके बाद बहन कहती है भाई, एक आरज़ू, एक तमन्ना लेकर तेरी बारगाह में आई हूँ। भाई, मैं एक इल्तिजा तेरी बहन बारगाह में लेकर आई हूँ। आज भी बहनें अपने भाइयों के दरवाजे पर अल्लाह अकबर इस तरीके से खड़ी रहती है जैसे इनका कोई रिश्ता ही नहीं है इनसे। आज भाई सारी दुनिया को दौलत बांटता है, लेकिन जब बहन की बारी आती है तो वही भाई उसी के पास दौलत खत्म हो जाती है। मुस्तफा के दीवानों, जहां पर मुस्तफा जाने रहमत ने नमाज का तरीका सिखाया है, रोजे का तरीका सिखाया है, हज और ज़कात का तरीका सिखाया है, वहीं पे मुस्तफा ने रिश्तों को निभाना भी सिखाया है। रिश्तों को कैसे निभाया जाए ये भी मुस्तफा जाने रहमत ने हमें सिखाया है। मेरे अजीज, मुस्तफा से उनकी बहन फरमाती है, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे लोग, आप लोगों ने हमारे
हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, कैदी बना लिया है। मैं ये चाहती हूँ, आपकी बारगाह में इल्तिजा और तमन्ना करती हूँ कि आप उन्हें रिहा कर दीजिए ताकि मेरी इज्जत लोगों के सामने रह जाए। आप फरमाते बहन यहाँ कुछ नहीं कहूँगा, चल अपने लोगों के पास मुझे लेकर चल, अपने कबीले के लोगों के पास मुझे लेकर चल। हजरत शीमा मेरे सरकार को अपने लोगों के पास लेकर आती है। मेरे सरकार ने अपनी काली कमली उतारी है, उसे बिछाया है और अपनी बहन से कहते हैं बहन अब इसमें तू बैठ जा। अल्लाह अकबर, कैसे रिश्तों को निभाया जाता है ये मुस्तफा जाने रहमत ने हमें सिखाया है। बाप का इंतकाल हो जाता है, बहनें पराई हो जाया करती है, उनसे हमारा रिश्ता टूट जाता है। मेरे अजीज, अगर बाप का इंतकाल हो जाए या बाप कमजोर हो जाए, आप अपनी बहनों से रिश्ता निभाइए। अल्लाह अकबर, अगर कुंवारी है उनकी अच्छी तरीके से तरबियत कीजिए और उसके बाद उनको दूसरे घर रुखसत कीजिए। यकीन माने मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो दूसरा काम करते हैं लोग उन्हें तो सिर्फ सवाब मिलता है, लेकिन जो बहनों को अच्छी तरबियत देकर उन्हें अपने घर से बाइज्जत रुखसत करते हैं, तो जैसे ये दोनों उंगली एक साथ है, बरोज़े महशर वो इंसान मेरे साथ होगा, बरोज़े महशर वो आदमी वो शख्स मेरे साथ होगा, मेरा दीवाना। मेरे अजीज, लेकिन आज हमने बहनों को पराया किया है, आज हमने बहनों को इतना दूर अपने आप से कर दिया है। ईद का मौका आता है, वो बेवा माँ जिसके शौहर का इंतकाल हो गया है, जिसका जवान बेटा है, 2 नहीं 3 4 बेटे हैं, लेकिन वो बूढ़ी माँ डरती है, किससे कहूँ कि बेटे एक तेरी बहन है, उसके घर में भी कुछ सेवैयां लेकर चला जा। ये नौबत हमारे मुआशरे की आ गई है। अल्लाह अकबर, कितनी गैरत की बात है। एक बूढ़ी माँ को डर लगता है अपनी दवाइयों के लिए पैसा मांगने के लिए। अल्लाह अकबर, हम कहाँ आ गए? हमें तो दूसरों की खिदमत करनी थी, आज हम अपनों का ही हक मार कर बैठे हैं। आज बूढ़े माँ बाप हमारे अल्लाह अकबर तरसते रहते हैं, हम दुनिया में दौलत तकसीम करते हैं, दुनिया के साथ सिला रहमी के साथ सलूक पेश करते, सिला रहमी के साथ पेश आते हैं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को इस तरीके से हम पेश आते हैं उनके साथ जिसका कोई जवाब नहीं। मेरे अजीज, आपको अगर वाकई अपनी उम्र में बरकतें चाहिए, मेरे मुस्तफा की हदीस सुने, मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम्हें उम्र में बरकतें चाहिए तो अपने रिश्तों को निभाना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें अता फरमाएगा। हजरत शीमा को मेरे सरकार बैठाते हैं और बैठाने के बाद मेरे सरकार फरमाते अब बहन बोल तू क्या चाहती है मुझसे। मेरे सरकार ने जब ये जुमले कहे तो हजरत शीमा के चेहरे पे एक अजीब व गरीब कैफियत तारी होती है, खुशी जाहिर होती है। अल्लाह अकबर, हजरत शीमा फरमाती मेरे लोगों को छोड़ दिया जाए, हमारे कबीले के लोगों को छोड़ दिया जाए। मेरे सरकार सहाबा की तरफ देखते और अर्ज करते हैं ऐ सहाबा, आज बगैर मशवरे के आप लोगों के एक फैसला लेना चाहता हूँ, इसमें आपकी क्या राय है? करते या रसूल अल्लाह, फैसला तो बहुत छोटी चीज है, अगर आप बगैर पूछे हमारी जान भी मांगे तो या रसूल अल्लाह आपके नाम पे हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं फिर जाओ जितने कैदियों को हमने तकसीम किया था, जिन जिन लोगों को दिया था, शीमा के कबीले के जितने कैदी हैं उनको लेकर आया जाए और हजरत शीमा को दिया जाए। हजरत बिलाल से मेरे आका फरमाते हैं बिलाल जाओ, बैतुल माल से नहीं बल्कि अपने मेरे खास खजाने से जाओ 2000 दिनार लेकर आओ और हजरत शीमा की झोली में डाल दिया जाए। मेरे आका सलाम ने अपनी बहन को इस तरीके से नवाजा है और अपनी पूरी उम्मत को दर्श दे दिया है कि जब भी तुम्हारी बहनें तुम्हारे दहलीज पे आया करे तो उन्हें खाली हाथ रुखसत ना किया करो। अगर वो कभी कमों की मारी तुम्हारी दहलीज पे आ जाया करे तो काम पे बाद में जाया करो, पहले उनके पास बैठकर उनकी खैरियत पूछ लिया करो कि बहन तो आखिर घर आई किस लिए है, कोई तकलीफ तो नहीं है। मुस्कुरा के उनसे 2 लम्हे बात कर लिया करो ताकि उन्हें अपने बाप की कमी महसूस ना हो और कभी ये महसूस ना हो कि काश मेरा बाप जिंदा होता तो मैं घर आती तो मुझे घर अपना सा महसूस होता। अल्लाह अकबर, अपनी बीवियों के ऊपर बेशुमार दौलत लुटाने वालों, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, अल्लाह नवाज़े खूब लुटाए, लेकिन उसके साथ साथ अपने और रिश्तों का भी ख्याल रखे, अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखे, अपने बहनों का ख्याल रखे, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे। ये मुस्तफा जाने रहमत का किरदार और इखलाक है। जब आप इस तरीके से किरदार और इखलाक पेश करेंगे दुनिया वालों के सामने तो खुदा की कसम लोग सिर्फ आपको मुसलमान ही नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी का गुलाम कहकर पुकारेंगे कि वाकई मोहम्मद अरबी के गुलाम हो। तो ऐसे होने चाहिए जब गुलामों के किरदार और इखलाक का ये आलम है तो इमामुल अंबिया के किरदार और इखलाक का आलम क्या होगा। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप जब चलते हैं तो मजहब इस्लाम चलता है, आप जब बोलते हैं तो मजहब इस्लाम बोलता है, आप जब लोगों के साथ कोई मामला पेश करते हैं तो यानी मजहब इस्लाम का नाम पहले आता है। जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपका नाम बाद में होगा, मोहम्मद अरबी का नाम पहले होगा।
اسلام کا بول بالا پہلے ہوگا۔ میرے عزیز اپنے کسی بھی کام سے مذہب اسلام کو بدنام نہ کرے۔ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو یقین مانے ایسا کریں کہ نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ زیادہ موبائلوں میں وقت نہ ضائع کریں، آپ اپنے رشتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک طریقہ عطا کیا ہے اس طریقے پہ عمل کریں تو زندگی اتنی بہار میں گزرے گی، اتنی خوشگوار گزرے گی، یقین مانے ہمیں زندگی میں لطف ہی لطف آئے گا، ہمیں زندگی جینے میں عجیب و بہت زیادہ مزہ آئے گا، ہمیں زندگی جینے کا ایک مقصد مل جائے گا۔ میرے عزیز اپنے مقصد سے بالکل نہ ہٹے۔ آخری شعر سنے اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے عزیز شعر سنے اور شعر سننے کے بعد اتنا آپ مچلیں گے اور یقین مانے اپنی زندگی کا آپ کو ایک مقصد ملے گا، کیونکہ لوگ اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ لوگ جب اپنے مقصد سے ہٹتے ہیں تو یقین مانے پھر وہ دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بغیر مقصد کے کیل نہیں لاتے ہیں تو سوچو اللہ نے آپ کو بغیر مقصد کیسے پیدا کر دیا ہوگا۔ میرے رب نے اگر تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ میرے عزیز شعر سنے، خدا کے روبرو جو سر کو جھکانا بھول جاتے ہیں، خدا کے روبرو جو سر کو جھکانا بھول جاتے ہیں وہ درباروں میں جا کر سر اٹھانا بھول جاتے ہیں۔ خدا کے روبرو جو سر کو جھکانا بھول جاتے ہیں وہ درباروں میں جا کر سر اٹھانا بھول جاتے ہیں۔ انہی کے ہاتھ میں کاسا تھما دیتی ہے یہ دنیا، انہی کے ہاتھ میں کاسا تھما دیتی ہے یہ دنیا۔ جو کھانا یاد رکھتے ہیں کمانا بھول جاتے ہیں، جو کھانا یاد رکھتے ہیں کمانا بھول جاتے ہیں۔ اپنے مقصد سے نہ ہٹے، اپنے مقصد کو یاد رکھیں، زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، مکمل طریقے سے فیضان اور برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ رمضان کا ادب و احترام کریں، رمضان میں روزوں کا اہتمام کریں، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی بہنوں میں، اپنے اہل و عیال عزیز و اقارب میں دیکھیں کہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے جس کے گھر میں سحری کا انتظام نہیں ہے، جس کے گھر میں افطاری کا انتظام نہیں ہے۔ آپ عید کا انتظار نہ کرنا کہ عید آئے گی تو زکات نکالیں گے۔ میرے میاں عید سے پہلے رمضان بھی آتا ہے۔ غریب کے گھر میں اللہ اکبر پانی پی کر سحری کی جاتی ہے اور پانی پی کر افطاری کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ چلے، پتہ کر کے معلوم کر کے اگر کوئی ایسا آپ کے قریب ہے تو جا کر اس کے سحری اور افطاری کا انتظام کرا دینا۔ یقین مانے اللہ رب العزت کا کرم آپ پہ اتنا برسے گا، آپ اگر ایک گنا دو گے تو 100 گنا اس کو عطا کیا جائے گا۔ یقین مانے آپ کو دینے کی ایک لمٹ ہے، آپ کی اپنی طاقت کے حساب سے لوگوں کو دیں گے، لیکن اللہ رب العزت اپنے کرم سے اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسجد ہے آپ کے بغل میں، آپ دیکھ رہے ہیں اس علاقے کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے خدا کے واسطے اس مسجد کو سجدوں سے آباد کر لو، اس سے پہلے کہ وہ وقت قریب آ جائے جس وقت کو دنیا نزا کا عالم کہتی ہے، موت کا بالکل وقت قریب آ جائے، اس سے پہلے آپ اس مسجد کو سجدوں سے سجا لو، اس کو زینت بخش دو، تعمیری کام چلے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ فلاں لوگ کام کر رہے ہیں ہم کیوں حصہ لیں۔ میرے عزیز یہ کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے بلکہ خدا پاک کا گھر ہے۔ یہاں خدمت کرنے والے لوگ خادم کہلاتے ہیں، آقا نہیں کہلاتے ہیں۔ جو بھی خدمت کرے ضروری نہیں کہ آپ کھڑے ہو کر ہی کام کریں گے تبھی آپ کا شمار ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی جائز کمائی سے جو بھی کام کیا تو سمجھ لیجیے آپ اس میں خدمت کر رہے ہیں، آپ بھی اس کے خادم ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ادارے، اپنے مساجد، اپنی خانقاہوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہوں مریض عشق کے نبی مجھے دوا نہ دی جائے، میں ہوں مریض عشق کے نبی مجھے دوا نہ دی جائے، میں ہوں مریض عشق کے نبی مجھے دوا نہ دی جائے، میں ہوں مریض عشق کے نبی مجھے دوا نہ دی جائے، سرکار دو عالم کے دامن کی ہوا دی جائے۔ میں ہوں مریض عشق کے نبی مجھے دوا نہ دی جائے، سرکار دو عالم کے دامن کی ہوا دی جائے۔ میری موت بھی آئے تو مدینے میں پہنچ کے آئے، میری موت بھی آئے تو مدینے میں پہنچ کے آئے، تاکہ میری مٹی بھی اسی مٹی میں ملا دی جائے، تاکہ میری مٹی بھی اسی مٹی میں ملا دی جائے۔ تمنا ہے کہ راہ عشق میں یہ کام کر جاؤں، رسول اللہ کے روضے پہ جاؤں اور جا کے مر جاؤں۔ تمنا ہے کہ راہ عشق میں یہ کام کر جاؤں، رسول اللہ کے روضے پہ جاؤں اور جا کے مر جاؤں۔ میری دعا میں اتنا تو اثر ہو جائے، ہم سب کی دعاؤں میں اتنا تو اثر ہو جائے، دل جو یہاں تڑپے تو پیغمبر کو خبر ہو جائے، دل جو یہاں تڑپے تو پیغمبر کو خبر ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لے لا